Okay, comparing string. So in comparing string, what we have seen basically comparing the string, what we have seen. So we have seen a print amol is not equal to amol, then it gives false. Comparing by ASCII values, sir. Comparing So values and basically ASCII string values is and length. compared with respect to ASCII value of that specific character. So ASCII value जैसे कि मैंने आपको बताया था कैपिटल ए की क्या होती है, if you consider the 65. small a की होती है 97. Okay, so likewise other ASCII value you don't need to remember, only you have to remember for that uppercase and lowercase character, that is letters. For that purpose you have to only remember, in that case also you have to remember that first value of a and b, a for lowercase and uppercase. Nothing will be outside that specific letters will be asked with respect to ORD and CHR function. Okay, एक बार आपको वो क्लियर हो गया तो आप काउंट कर सकते हैं बाकी की वैल्यूज उससे. Okay, so what is the use of ORD function? It gives To the return ASCII value. So it returns the ASCII value that for that specific character. जैसे कि हमने CH is equal to A लिखा है and you apply that specific ORD function on that specific CH, so it gives you answer what? Capital का 65. Clear है? Likewise, what is the use of CHR function then? To get Returns character. character by Yes. जो भी आपने ASCII value वहाँ पे input दिया है, for that ASCII value it will give you the character that will be represented by the specific ASCII value. Okay. Now next that part we have covered is what is stride with respect to slicing. Stride. Hello. They are the steps to Number of factors to be moved forward. Yes. So likewise जैसे कि हमने 2:10:2 लिखा, तो what will be happen with respect to that? For that specific string 2:10:2, what will happen? it will print the character of Then I- 2. Some of the character will be skip, yes or no? सारे character Yes, वहाँ sir. पे display नहीं होंगे. So some of the character, some of the means कैसे होगा वो display? For example, Amol is there. Amol space something is there. So पहला होगा M से start होगा ना? M और O. Yes, sir. Oh, sir. O से start होगा. उसके बाद O consider नहीं करेगा, L भी consider, space consider करेगा. उसके बाद next Space. character will be displayed. Yes, okay. Likewise. Yes, sir. So that is nothing but stride. Okay. Then next part. Screen visible है सबको? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, so we'll next see the iterating the string. Actually वो traversing में हमने देखा था, फिर भी we will continue with that iterating strings. For example, I will take one string. S1 is equal to double quote welcome icon. One of the string I will take, and then I will write for I in S1 colon and print in bracket I comma n equal to. So what will happen with respect to this now? Hello. Space. Sir, space आ जाएगा. Okay. So horizontally होगा, but it will give you space with respect to that specific each and every character. Clear है? Yes, sir. Yes or no? Yes, So sir. ये iteration हमने किससे किया है? Which loop you are using? For loop. For loop. Yes, iteration by using for loop. वैसे ही सेम हम क्या कर सकते हैं? While loop से भी कर सकते हैं. For loop iteration. Iteration. कुछ नहीं, ऑलरेडी सिंपली हमने क्या किया है, जो हमने फॉर लूप का एग्जांपल अभी तक देखे, जितने भी एग्जांपल्स वी हैव डन विद दैट, सिंपली व्हाट वी हैव डन, वन वी हैव टेक वन इटरेशन काउंटर वेरिएबल एंड दैट काउंटर वेरिएबल दैट इज आई इन S1. तो हर एक केस हर एक कैरेक्टर वहां पे वो स्कैन करेगा, इटरेट करेगा, एंड दैट विल बी वी हैव डिस्प्ले बाय यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट. सिमिलरली वी कैन डू इट फॉर व्हाइल लूप आल्सो. तो ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस एग्जांपल? कुछ डाउट है इसमें? No, sir. कुछ नहीं, इसमें सिंपली हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग ली है, उसमें फॉर लूप अप्लाई किया और वन बाय वन कैरेक्टर वहां पे डिस्प्ले किया है. तो सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर एग्जांपल. और एक एग्जांपल लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वेलकम
string welcome to Python, same example, okay. And variable I will take I equal to 0 for example, while अभी इस यहाँ पे स्ट्रिंग कैसे स्कैन करना पड़ेगा हमें, व्हाट कंडीशन, I लेन less than length. लेन ना, क्लियर है, लेन क्यों लिया है यहाँ पे मैंने, दैट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वी हैव टू स्कैन ना, यस और नो, Yes, sir. ओके। वेलकम टू द पाइथन, अभी इसकी लेंथ क्या होगी फिर, टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट स्पेसिफिक स्ट्रिंग m1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 ना, 17. ओके। 17. तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या है इनिशियली मेरी, 0. 0 लेस देन क्या कंसीडर होगा वहां पे फिर, 17. 17. तो यहाँ पे कमेंट में लिखता हूं मैं 0 लेस देन 17, तो मतलब when the value of I will be 17, it will, what will happen, this loop will be Terminated. terminated, yes correct. So I will do one thing, और एक वेरिएबल लेता हूँ l is equal to m1 ऑफ, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, m1 ऑफ डिस्प्ले कर I करना पड़ेगा ना, yes or no, क्लियर है, हेलो, and then what we have to Yes, do, print in bracket l comma end is equal to, स्पेस देंगे, नहीं दिया तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। Then what we have to do now, next thing, I is equal to I plus 1. yes correct, I is equal to I plus 1 और I plus is equal to 1 भी कर सकते हैं, क्लियर है। So what will happen with respect to this also, क्या आउटपुट आएगा, सेम आएगा ना, Yes. the output Yes. that we will get for that specific for loop program, same output we will get here regarding while loop also, okay, we will check here, सर वो लूप में लेस देन इक्वल टू करना पड़ेगा ना, नो नीड ना, हमने 0 से स्टार्ट किया ना यहाँ पे, हेलो, हाँ ओके सर समझा, आया समझ में ना, हाँ लेंथ हमने यहाँ पे मैंने 1 से स्टार्ट किया रहता, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यहाँ पे हमने क्या करना पड़ता, ओके ऐसा करना पड़ता ना, तो फिर भी क्या आएगा आंसर, ओके ओके, वन थिंग क्या हो गया हमारे यहाँ पे, लेस देन while I is equal to 1, सर सर I is equal to 1 किया तो वो E से हाँ, चालू होगा। नहीं हाँ 1 से स्टार्ट होगा, सर वो हाँ, स्टार्ट 1 से होगा लेकिन लास्ट में जाके उसकी लेंथ को एक्सेस करने का ट्राई करेगा, यस, वो M तो यहाँ पे 1 करेंगे तो क्या होगा, कर सकते हैं 1, हाँ कर सकते हैं Yes, बट sir. फर्स्ट एक्सेस नहीं होगा। डब्ल्यू प्रिंट नहीं होगा सर सर वो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं कर सकते सर, क्योंकि वो सर, वो लेंथ के आगे चला जाएगा सर। सर कर सकते हैं L इक्वल टू M1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर I-1 या फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, कर सकते हैं ना, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो Tell me. इक्वल टू ही रखो, M1 के स्क्वायर ब्रैकेट में I-1 करो, I-1 करना पड़ेगा, यस और नो, क्योंकि क्या होगा उससे, I से 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो हमारा P वहां पे P नहीं प्रिंट होगा, W प्रिंट नहीं होगा ना, यस और नो, यस सर, Yes, sir. क्लियर है, यस सर समझा। क्लियर विद दिस। तो ये जनरली क्या होता है, जब व्हेन यू आर स्कैनिंग आवर स्ट्रिंग, तो जनरली क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है, तो आपको कंडीशंस वहां पे चेंज करने पड़ेंगे, देन वी हैव टू चेंज योर इंडेक्सिंग भी वहां पे अंदर चेंज करना पड़ेगा, तो सिंपली यू हैव टू फॉलो द सिंपल वे, 0 से स्टार्ट करो इंडेक्स और लेंथ वहां पे कंपेयर करो, क्लियर है सबको, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस, सर हाँ टेल मी, वो ये L इज इक्वल्स टू M1I क्यों लिखा है? वो कैरेक्टर वहां पे, वो M1 ऑफ I वहां पे स्टोर किया ना L में हमने, वो प्रिंट करना है ना हमें, एक एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं ना वहां पे, हाँ। देखो यहाँ पे इंडेक्स वाइज जा रहे हैं, यहाँ पे फॉर लूप था, वहां पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वो स्कैन हो रहा था, इस केस में क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 स्कैन हो रहा है ना, तो वहां पे तो कहाँ पे तो स्टोर करना पड़ेगा ना उसको, क्लियर है, ओके डायरेक्टली, और M1 ऑफ I भी लिखा तो भी चलेगा, वैसे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं ना उसको भी विदाउट L करके, यस सर,
मतलब कहाँ पे लिखना पड़ेगा? प्रिंट इन ब्रैकेट L की जगह या M1 इन ब्रैकेट यस यस हाँ, तो मतलब थर्ड एक वेरिएबल लिया है यहाँ पे इसको कमेंट भी डाल सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, M1 in bracket, what you have to write? Hello? I. क्लियर है? कर सकते हैं ना ऐसे भी? Yes, sir. So all of you clear with this iterating the string with respect to for loop and while loop? Anybody having any doubt? Hello? No, sir. Sir. No doubt, sir. Okay. So we'll move forward. One of the topic before we start with different inbuilt methods of that specific string and functions with respect to string. One part topic is remain, that is string formatting operator. Actually ये बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा string formatting operator. String formatting operator. So anybody having any doubt regarding iterating the string with respect to for loop and while loop? Hello? No, sir. Okay. So string C programming किसी का C programming देखो बस C में अपने when you are printing the value of that specific variable directly आप ऐसे लिखते हैं क्या वहां पे print f in bracket a ऐसे लिखते हैं क्या? Suppose you are done with the ऐसे लिखते हैं क्या? Directly. Right, sir. So what you are writing first, for example मुझे ये करना है sum equal to ऐसा कुछ तो किया होगा आपने ना, %d, a ऐसा किया होगा ना? Yes or no? Anybody? Hello? No, हेलो? sir. किसी ने C प्रोग्रामिंग किया है? नहीं सर, सी प्रोग्रामिंग नहीं की है। नहीं है, ओके। सो किया है जनरली सर। क्या होता है? हाँ मुकेश बताओ फिर क्या होता है? मतलब क्या पूछा? मैंने क्या बोला अभी, मैंने एक क्वेश्चन ऐसा था मेरा कि इन printf विथ रिस्पेक्ट टू सी प्रोग्रामिंग ऐसे लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, कुछ एक ही वैल्यू मुझे प्रिंट करनी, printf इन ब्रैकेट पे। फॉर्मेट के अलावा नहीं होता हो क्या? हाँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर, वी रिक्वायर व्हाट? फॉर्मेट स्पेसिफायर। सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सम इक्वल टू, जैसे कि मैंने एक मैसेज लिखा सम इक्वल टू %d, अभी %d इट इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर, ओके। सो जब भी आपको कुछ वैल्यूज वहां पे वेरिएबल की कुछ वैल्यूज वहां पे प्रिंट करने, जैसे कि मुझे एडिशन का प्रोग्राम कर रहा हूं मैं, तो वहां पे सम मैंने लिए इंटीजर की सम, तो ऑब्वियसली मुझे सम जो डिस्प्ले करना है वो किस फॉर्मेट में करना होगा? स्पेसिफिक इंटीजर। तो प्रिंट ए यहाँ पे नॉर्मली हमने लिखा, किसी कहाँ पे भी हमने कुछ ऐसा लिखा है क्या? सम इक्वल टू %d कॉमा करके ए लिखा है कहाँ पे किसी भी प्रोग्राम में? नहीं है। तो वो एक्चुअली वहां पे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बट नहीं लिखा तो भी चलता है यहाँ पे, कहाँ पे? पाइथन में। बट जनरली सी प्रोग्रामिंग यू हैव टू कंपल्सरी राइट डाउन व्हाट? फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ दैट स्पेसिफिक डेटा टाइप्स ऑफ दैट स्पेसिफिक वेरिएबल। जैसे %f होता है फॉर फ्लोट, %c होता है फॉर कैरेक्टर, %s होता है स्ट्रिंग के लिए। लाइकवाइज डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर अवेलेबल, जैसे कि %u अनसाइंड इंटीजर, okay, then %i is also used, or %o is also used. So likewise different format specifier are used to display the value which will be stored at specific variable. जैसे कि यहाँ पे sum is equal to %d, a, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया? sum is equal to %d के जगह पे क्या वैल्यू डिस्प्ले होगा? What will be display? हेलो मुकेश? एक ही वैल्यू, एक ही वैल्यू वहां पे डिस्प्ले होगी। और जनरली हम जब वहां पे ये ऐसे लिखते हैं, कहाँ पे? पाइथन में सम कॉमा ए, तो यहाँ पे कैसे होता है फिर? वो डायरेक्टली वैल्यू असाइन होता है, सम इज इक्वल टू, यस और नो? क्लियर है? बट दिस इज नॉट द केस विद योर सी प्रोग्रामिंग, पर यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसलिए टॉपिक दिया है, सो वी विल सी वन बाय वन व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर दैट स्पेसिफिक फॉर्मेट स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू दिस पाइथन। तो यहाँ पे सिंटैक्स पहले मैं कमेंट में लिखता हूँ, हैश सिंटैक्स देखो कैसे है। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मेट, वो फॉर्मेट क्या होता है बाद में बताऊंगा आपको मैं। उसके बाद फॉर्मेट फॉर एग्जांपल डबल कोट में लिखते हैं, ठीक है? दैट यू हैव टू राइट इन डबल कोट % फॉलोड बाय यहाँ पे वैल्यूज, जो भी वैल्यूज है वो सिंटैक्स जब हम लिखेंगे प्रॉपरली एग्जांपल, तो
तब आपको पता चलेगा। सो दिस इज अ सिंटैक्स फॉर फॉर्मेट स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर। अभी इसका डायरेक्टली एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल के थ्रू आपको पता चलेगा हाउ इट विल वर्क। ओके, सिंटैक्स समझ में है सबको? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस सिंटैक्स? Yes, हेलो, sir. हाँ, एग्जांपल आपको पता चलेगा तब आपको क्लियर होगा कैसे वैल्यू वहां पे पुट करने। ओके, सो एग्जाम में क्या होगा, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर? तो डबल कोट में फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मेट, दैट इज परसेंटेज या परसेंटेज जो भी है एज पर योर इनपुट दैट यू हैव टेकन। ओके, देन परसेंटेज में आपने टपल लिखा है, वो टपल में आपको क्या करने हैं, जो भी आपको वैल्यूज वहां पे प्रिंट करने दैट यू हैव टू मेंशन, और वेरिएबल का नाम जो भी आपको लिखना है, दोनों तरह से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, यहाँ पे नेम इक्वल टू अमोल। ओके, सो नेम की वैल्यू क्या ली है मैंने यहाँ पे, अमोल। ओके, और एज इज इक्वल टू सम वैल्यू, आई विल टेक फॉर एग्जांपल 32। ओके, एंड देन नाउ सी हियर दैट सिंटैक्स विल कन्वर्ट इनटू कोड। ओके, सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे मैंने अभी किया था ना, ऊपर वाला एक एग्जांपल लिखा था, जैसे नेम इक्वल टू, अभी नेम इक्वल टू क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज। परसेंटेज, बिकॉज मेरे नेम की वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है ना, यस और नो? हेलो, यस yes, and age equal to, now I will take what I will write now here, age क्या है मेरा, integer है, so percent d, yes, so likewise अभी यहाँ पे हो गया हमारा, यहाँ पे क्या देना आपको, अभी परसेंटेज सिंबल लिखना है, यहाँ पे परसेंटेज सिंबल, उसके बाद ब्रैकेट लेना है, मतलब टपल है ये, टपल में अभी यहाँ पे क्या डालने पड़ेगी हमें, व्हाट यू हैव टू मेंशन, नेम कॉमा एज, नेम कॉमा व्हाट आई हैव टू राइट, एज, दैट इज करेक्ट। सो नेम कॉमा एज लिखेंगे तो इट विल गिव यू आंसर व्हाट, नेम इक्वल टू अमोल एंड एज इज इक्वल टू 32। क्लियर है सबको सिंटैक्स? Yes, sir. ओके, सो लाइकवाइज क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। क्लियर है? नेम इज इक्वल टू अमोल एंड एज इज इक्वल टू 32। अरे यही हम सिंपल, हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं नॉर्मली, जो भी प्रोग्राम कैसे करते हैं, प्रिंट इन ब्रैकेट क्या करते हैं हम, नेम इक्वल टू डबल कोट में, ऐसे ही करते हैं ना, Yes, sir. कॉमा करके क्या लिखते हैं यहाँ पे, नेम ना, Name. डिस्प्ले नेम ना, क्लियर है? Yes, और नो, sir. और Yes, क्लियर sir. विद फॉर्मेट स्पेसिफायर, कैसे सिंटैक्स समझ, सिंटैक्स प्रॉपर्ली देखो, यहाँ पे बीच में कभी कभी क्या होता है, इन एग्जाम दे गिव यू फोर्सफुली सम कॉमा, तो उस केस में भी आपका कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, सो कॉमा इज नॉट देयर। ओके, सो कैसे सिंटैक्स समझ में आया, पहले फॉर्मेट, फॉर्मेट मींस व्हाट, नेम इक्वल टू जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे कि मैंने नेम यहाँ पे स्ट्रिंग लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिखा, एज क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल और एक लेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल I will take some float value, sal equal to find something ऐसे कुछ लिखता है, ओके, एंड will do कॉमा करके यहाँ पे, फिर I will take, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, sal equal to, अभी बताया था मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर फ्लोट आल्सो, परसेंटेज। what I have to write, percentage. So sometime they can ask the question on format specifier also. For integer, what is a format specifier? For string, what is a format specifier? For string float, what is a format specifier? All of you remember those format specifier. जो बुक मैंने स्कैन करके दिया उसमें दिए सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर, %c फॉर कैरेक्टर, देन %o फॉर ऑक्टल इंटीजर वैल्यू, हेक्स के लिए %x होता है, लाइकवाइज नेम के लिए परसेंटेज एस होता है। वहां पे %f, वहां पे क्या हो गया, सैल, हाँ यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया नहीं, इट विल गिव यू आंसर। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. ऑल ऑफ Yes, क्लियर sir. विद फॉर्मेट स्पेसिफायर? अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ तो डायरेक्टली पैरामीटर पास, मतलब वेरिएबल के नाम वहां पे ये किए थे, अभी मैं वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ उसमें, डायरेक्टली रन टाइम में कुछ वैल्यूज मुझे देने, तो आई विल डू लाइकवाइज, सो नेम इक्वल टू, डबल कोट में लिखना पड़ेगा ये सेम स्टेटमेंट, इक्वल टू परसेंटेज एस कॉमा एज, ओके, इक्वल टू परसेंटेज डी, ओके,
और इसको ये कंप्लीट करता हूँ, यहाँ पे परसेंटेज लिखता हूँ और टपल में वैल्यूज लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा अंकिता, लाइकवाइज कॉमा करके सेकंड वैल्यू लिखा मैंने फॉर एग्जांपल 20। तो व्हाट विल हैपन नाउ, डायरेक्टली वैल्यूज पास होंगे ना उसको, नेम को वैल्यू क्या पास होगी, हेलो हेलो Ankita. एंड एज इज 20. क्लियर है, ऑल ऑफ Yes, क्लियर विद द फॉर्मेट, स्ट्रिंग फॉर्मेट। जनरली ये यूज करने की जरूरत नहीं है हमें, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो क्या, जैसे मैंने आपको बोला था एट फर्स्ट जो लेक्चर हुआ था हमारा, कि सी में क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग में उसको पता नहीं चल रहा है कि विच टाइप ऑफ वेरिएबल यू आर displaying the output of which type of data type is there, what is the data that specific variable। और इसमें कैसे होता है, when you are simply, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है नेम इज इक्वल टू 1, तो कंपाइलर को वहां पे पता चल रहा है कि नेम का डेटा टाइप क्या है, हेलो, String. String. so there is no need to write down the format specifier for that specific variable while you are printing that specific output of that specific variable or output of that specific data। क्लियर है, यहाँ पे क्या होगा फिर, डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर लाइकवाइज। सो बाय डिफॉल्ट वहां पे होता है, पर दैट इज नॉट द केस विद, वहां पे आपने डिफाइन किया रहता है ऊपर, कैसे INT सी प्रोग्राम बोला INT नेम एज इज इक्वल टू एज, तो INT एज मतलब क्या हो गया वहां पे इंटीजर। बट व्हाइल यू आर डिस्प्लेइंग और स्कैनएफ इनपुट देते वक्त भी आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे स्कैनएफ फंक्शन में आपको %d वहां पे मेंशन करना ही पड़ता है। क्लियर है, तो वहां पे स्टेटमेंट बताता हूं आपको कैसे होता है, जनरली सी का बताता हूं स्कैन एफ। अभी जैसे कि अभी इनपुट फंक्शन यहाँ पे कैसे लिखते हैं हम, a इज इक्वल टू INT इनपुट एंटर नंबर, यस और नो, हेलो, तो उसको पता चल रहा है ना कि यू आर एंटरिंग वैल्यू ऑफ व्हाट, इंटीजर वैल्यू, यस और नो, ओके। तो वैसे ही इस यहाँ पे कैसे होते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d %f लिखा मैंने और कॉमा करके एम्परसेंड a comma ampersand t। so what is the meaning of this now, ये सी के वो पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं आपको मैं। हेलो मुकेश, कैन यू टेल मी। सर वो जो हम लोग इनपुट करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट में, वो 2 वेरिएबल्स में स्टोर करेगा। तो यहाँ पे एम्परसेंड डालना ही पड़ता है, उसका मीनिंग होता है कि %d मतलब a की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर, और %f मतलब क्या होगा, b की वैल्यू क्या होगी, फ्लोट। एम्परसेंड क्यों लिखते हैं वहां पे, एड्रेस ऑफ ए, जो भी वैल्यू आप इनपुट देंगे, स्कैनएफ फंक्शन में क्या यूजर से इनपुट देने के लिए ये कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, स्कैनएफ फंक्शन। कहां पे, सी प्रोग्रामिंग में। दिस इज अ इनपुट फंक्शन, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन सी। क्लियर है, तो जब हम स्कैनएफ लिखेंगे तो वहां पे डायरेक्टली क्या होगा, और ये ऊपर एक मैसेज लिखना पड़ता है हमें, फॉर एग्जांपल एंटर वैल्यू ऑफ ए बी, तो डायरेक्टली वो स्कैनएफ फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो वहां पे आप जो भी वैल्यू डालेंगे दैट विल बी स्टोर्ड एट एड्रेस ऑफ दैट ए एंड एड्रेस ऑफ बी, जो भी मेमोरी लोकेशन है। यही कंसेप्ट आगे उन्होंने कैरी किया है पॉइंटर में, सेम कंसेप्ट। सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस द फॉर्मेट स्पेसिफायर, व्हाई वी हैव टू यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी प्रोग्रामिंग, ऑल ऑफ यू क्लियर, क्यों लिखना समझ में है सबको, हेलो, Yes, sir. what is the Yes, use of format specifier with respect to C programming, anybody, to understand for that specific compiler which type of value you are entering for that specific variable। क्लियर है, कौन सी वैल्यू आप इनपुट दे रहे हैं वो अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहाँ पे वो टॉपिक दिया है, बट देयर इज नो नीड टू, जैसे हमने ऑल कितने सारे प्रोग्राम किए अभी तक, कहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है क्या, नहीं, नो नीड, बिकॉज मतलब एक्स्ट्रा कोड बढ़ता है वहां पे, प्रिंट का स्टेटमेंट बड़ा होता है, अगेन यू हैव टू फॉलो दैट सिंटैक्स, डबल कोट एंड परसेंटेज, दैट वैल्यू यू हैव टू मेंशन। देयर इज सो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए आपको ये याद रखना है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर। सो ऑल ऑफ यू क्लियर व्हाट इज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर, क्लियर है सबको, हां टेल मी। So string formatting operator is defined in Python library. Yes, Python library, yes. जो भी %s, %d, %f, all things are defined in Python library, yes. सिर्फ वहां पे सिंटैक्स प्रॉपर्ली लिखना है हमें।
नेम के लिए परसेंटेज सी लिखना है क्या? यहाँ पे नेम क्या होगा, %c लिखेंगे तो नेम के लिए वेदर इट विल वर्क, होगा वर्क? नो सर। क्या हो गया वहां पे, ये हमने एक्स्ट्रा फंक्शन लिखा है, वन थिंग वेट, इसको कमेंट डालते हैं, इसकी जरूरत नहीं थी वहां पे। सो अभी ये हो गया है, ठीक है, क्लियर है? कैरेक्टर मतलब सिंगल कैरेक्टर, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, स्ट्रिंग लिया है, तो स्ट्रिंग के लिए ऑब्वियसली क्या होगा, %s आना चाहिए, %f इट इज फॉर फ्लोट, %d फॉर इंटीजर। क्लियर है सबको? ऑल ऑफ यू क्लियर विद द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स विथ रिस्पेक्ट टू पाइथन प्रोग्रामिंग और एनी अदर प्रोग्रामिंग, ओके? Yes, sir. पर हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, मतलब क्यों? आप देखो अभी ये प्रिंट स्टेटमेंट नॉर्मली हम लिखते थे नेम, एज, सैलरी, ये बाकी चीजें ऐड करने की जरूरत रहती है क्या नॉर्मली? सिंपली वी आर डिस्प्लेइंग दैट आउटपुट ना, यस और नो? सिंपली आर मेंशन द वेरिएबल नेम, यू विल गेट द आउटपुट फॉर दैट स्पेसिफिक वेरिएबल्स। सो एग्जाम में क्या होगा, जनरली सिंटैक्स पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर। तो क्लियर है सबको? सिंटैक्स यहाँ पे दिख रहा है सबको? क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखा रहता है डबल कोट में, क्या लिखना है आपको? व्हाट यू हैव टू राइट, द मैटर दैट यू हैव टू डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन विथ फॉर्मेट स्पेसिफायर, यस और नो? क्लियर है क्या? Yes, sir. Okay, followed by what you have to mention in tuples, what you have to write, the variable name or the direct value that you have to print, direct value भी दे सकते हैं, yes or no? यस सर। क्लियर है सबको अभी? एनी डाउट? No, हेलो, sir. अरे बोलो ना, सारे लोग बोल, सबका आंसर आना चाहिए मुझे, yes or no? नो सर। Yes, sir. No doubt, sir. Okay, clear. So we'll move forward. So any doubt regarding iterating the string and formatting, format string, format operator? नो सर। No, sir. Okay. No, So we'll forward. अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट, अभी ये इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू योर फाइनल एग्जामिनेशन और एनी अदर एग्जामिनेशन, थ्योरी एग्जाम भी होगा या ऑब्जेक्टिव भी होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑन योर इनबिल्ट फंक्शन ओनली, और बहुत से 30 to 35 फंक्शंस वी विल टेक इन योर, एक्चुअली दिए बुक में भी दिए है और उतने भी सिलेबस में भी दिए है, so that we have to cover. Okay, so next topic is hash, यहाँ पे लिखता हूँ कमेंट में, built in string methods and functions और built in functions. So what is the meaning of built in? अभी ये हुआ है ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में, built in string, Which are already available in Predefined function. yes, these are the predefined methods which are available in string libraries, string module. Clear है? Yes, or sir. no? Okay. Yes, sir. So one by one क्या करेंगे हम, एक एक यहाँ पे आप नोट डाउन करके लो, ओके? पैरेलली आपको भी करना है, लिख के लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिया फॉर एग्जांपल, पहला फंक्शन देखेंगे हम, तो वन बाय वन सारे फंक्शन देखेंगे। str इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल हेलो लिखा है, उसके बाद प्रिंट लिखा है मैंने, सो आई विल टेक फर्स्ट फॉर एग्जांपल आई विल टेक str डॉट कैपिटलाइज फंक्शन, देखते कैपिटलाइज, and simply I will return. So this is your first method, first method with respect to string. इसका मीनिंग यहाँ पे नहीं लिखा, आपको समझ में आए, उसके फंक्शन में उसका मीनिंग है एक्चुअली, लोअर केस को अपर केस। नो नो नो, H को कैपिटल कर देगा। it will only capitalize the first character of that specific string. अभी अपर केस का अलग से भी है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है, आई विल टेल यू वन बाय वन देखने वाले। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो एग्जाम में कैपिटलाइज और अपर केस वाला सेपरेट वहां पे है, ओके? सो वहां पे कंफ्यूज होना नहीं है आपको, वो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली करता हूँ मैं, आई विल डू इट राइट नाउ। प्रिंट str डॉट अपर करके एक फंक्शन है, क्या है? अपर, ओके? सो व्हाट विल आप अपर के साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लोअर भी कंसिडर करता हूँ डायरेक्टली। प्रिंट, अभी ऑलरेडी लोअर है वहां पे, तो उसके लिए दूसरा मैं स्ट्रिंग लेता हूँ और एक str1 डॉट लोअर। सो नाउ टेल मी द व्हाट, अभी जनरली क्या है बताइए, इतना हार्ड नहीं हो,
हर एक फंक्शन जो है ना उसके नाम में उसका मीनिंग एक्चुअली वहां पे होता है, मतलब इट विल डायरेक्ट नॉट डिफिकल्ट टू रिमेंबर दोस फंक्शन व्हाट विल हैपन विद रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा, क्लियर है? फंक्शन आप लिख के लिखो, सो इन द लाइकवाइज क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। हो गया? Yes, तो sir. कैपिटलाइज अपर और लोअर में डिफरेंस समझ में है सबको? सो कैपिटलाइज Yes, में sir. क्या होता है? First फर्स्ट care. कैरेक्टर यहाँ पे लिखता हूं मैं, कैर ऑफ स्ट्रिंग कन्वर्ट टू अपर। ओके, यहां पे क्या होता है? टोटल स्ट्रिंग कन्वर्ट टू, टेल मी, अपर ना? Yes, sir. एंड लास्ट वन यही कॉपी करता हूं मैं, थर्ड वन यहाँ पे क्या लेंगे? लोअर। अभी इसके रिगार्डिंग और 2-3 फंक्शन है वो हम क्या करेंगे अभी तुरंत लेके जाए कंप्लीट करेंगे। ओके, अपर तो हो गया, उसके बाद लोअर भी हो गया। अभी यहाँ पे देखो, आई विल टेक वन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल m1 इक्वल टू स्ट्रिंग, वैसे ही लिखता हूँ हेलो, उसके बाद प्रिंट इन ब्रैकेट m1 dot is lower, m1 dot is lower. Now tell me what is the meaning of this function? It checks whether it is a lowercase or not. Lowercase or not? Not. It checks अगर वो lowercase है. True or false माइनस। So what will be the answer for this case now? True होगा. ट्रू होगा। Will give you True. true. Yes or no? तो यहाँ पे क्या किया उसने, वहां पे समझ में आ रहा है इज लोअर मतलब क्या कर रहा है? वो चेक कर रहा है। अब यहाँ पे कैपिटल करता हुआ तो क्या होगा? क्लियर है? Yes, sir. Yes, So sir. what we have to check here by using is lower? Hello? Hello? First We have to character. check whether the string is a lowercase or not. String is lowercase, first character नहीं, string is lowercase or not? String Yes is or no? lowercase or not. Yes. Okay, sir. clear है सबको? I will take another example. Another नहीं है, यहाँ पे change करता हूँ मैं. I will do one thing. And these functions are very important with respect to your MCQ exam also. Is upper यहाँ पे. Now tell me what will happen now? False. True. 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 False and true. Clear है? First वाला false क्यों आया? Because वो upper के lower case में नहीं है, इसलिए false आया. और second वाला upper is upper है तो obviously वो क्या है? Upper case में है तो obviously क्या हो गया वो? So all of you clear with these upper case, lower case functions with respect to string? Yes, sir. Capitalize. Yes, sir. अभी capitalize का और एक वैसे एक function है, वो भी complete करके लेंगे हम यहाँ पे, तुरंत आया है तो. अभी क्या करेंगे? I will take one string. For example, S1 equal to कुछ तो for example good morning and I will do one thing, print str dot title. देखो अभी चेक करो आउटपुट क्या हो रहा है. First character of each word capitalize. एक मिनट, str लिखा है हमने, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? S1. S1 लिखना चाहिए. S1. सो टाइटल का मीनिंग सबको पता ही है. अभी जनरल देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक फंक्शन का मीनिंग है ना उसके अंदर ही उसको. टाइटल का मीनिंग कैसे होता है? जनरल देखो, आप जो भी आप टाइटल रखते हैं, हर एक कैरेक्टर उसका पहले कैरेक्टर सेंटेंस होता है, उसका पहले कैरेक्टर क्या होता है? Capital होता है. कैपिटल होता है. सो यहाँ पे भी क्या हो गया? टाइटल क्या कर रहा है? वो पूरे मतलब पूरे सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स है उसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या कर रहा है वहां पे? क्लियर? व्हाट विल हैपन विद रिस्पेक्ट टू दिस? हेलो? Yes, sir. First First character character of को each capitalize string will करो. become So it will written in title case. Okay. So यहाँ पे क्या क्या कर रहा है ये समझ में है सारे आपको विथ रिस्पेक्ट टू अपर केस लोअर केस वाले.
Yes, sir. एनी डाउट? Yes. और उसमें है और एक बाकी रह गया एक्चुअली। ये टाइटल की जगह क्या कैपिटलाइज ये डालो कर रहे तो कैपिटलाइज डाल, देखना क्या हो रहा है, क्या होगा? टेल मी। सिर्फ जी कैपिटल जी होगा फॉर कैपिटल। गुड मॉर्निंग, सिर्फ सिर्फ जी जी हो जाएगा। कैपिटल होगा। बराबर है? ऑल ऑफ इट क्लियर? यस सर। ये सारे इनबिल्ट है, तो हमें इसमें कुछ मतलब ट्राई करके देखना ही नहीं कुछ। ऑल ऑफ गेटिंग? आपको मैंने पहले बताया जो फंक्शन टॉपिक हमने पढ़ा था, जो भी हम पैरामीटर या जो भी फंक्शन होता है, फंक्शन का जो भी मीनिंग होता है वो प्री डिफाइन होता है इनबिल्ट का। यस और नो? क्लियर सबको? यस फॉर एग्जाम्पल आपने Yes, यूजर sir. डिफाइंड फंक्शन कुछ क्रिएट किया, उसमें कुछ लॉजिक आपने लिखा, वो लॉजिक आप खुद से जब तक उसको चेंज नहीं करेंगे तब तक वो लॉजिक सेम वही रहेगा ना, जब तक आप उसको यूज कर रहे हैं, जब तक उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। यस और नो? मतलब फॉर एग्जाम्पल Yes, सिंपल है, sir. मैंने प्रोग्राम किया है फंक्शन का 2 पैरामीटर वाला, तो ऑब्वियसली उसमें पैरामीटर कितने डालने वाला हूं मैं? 2 ही। तो यहाँ पे कैपिटलाइज फंक्शन का मीनिंग क्या दिया है उन्होंने? यू हैव टू चेक व्हाट, सिंपली यू हैव टू व्हाट फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दैट स्पेसिफिक स्ट्रिंग विल बी, तो जो स्ट्रिंग कैसे भी हो, मोर देन 2 वर्ड्स होंगे या उस स्ट्रिंग में तो भी चलेगा। ओके, और सिंगल होगा तो ऑब्वियसली सिंगल वाला पहला जो उसका ही होगा। और जो अभी हमने गुड मॉर्निंग वाला देखा उसमें भी क्या हो गया? जी कैपिटल हो गया। यस और नो? क्लियर है? Yes. हेलो? Yes, So sir. Yes, do sir. next thing. Digit होता है ना सर? Okay. सर रिप्लेस वाला सर। सब करने वाले हैं। रुक, वेट इट। प्रिंट s1 डॉट स्वैप केस, okay. So tell me what will happen now? लोअर केस वाले अपर केस में कन्वर्ट और अपर वाले लोअर। अभी इस केस में क्या थे? सारे लोअर थे इसलिए क्या हो गए? अपर हो गए। यस और नो? अभी हम क्या करेंगे? आई विल डू वन थिंग। क्लियर है? यस और नो? यस सर। Yes, sir. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? अभी ये सारे वहां पे कंफ्यूजन करना नहीं है, सिंपल है। स्वैप केस मतलब ऑब्वियसली अपर का लोअर, लोअर का अपर। टाइटल मींस जो भी आपका टाइटल, जो फॉन्ट होता है हमारा टाइटल में, टाइटल जो भी हम लिखते हैं फॉर एनी डॉक्यूमेंट और एनी अदर, जो भी आप कुछ सिंपल है, आप कुछ आंसर भी लिखते हो तो उस केस में जो भी टाइटल होगा, सो दैट टाइटल का जो भी सेंटेंस होता है, इन सेंटेंस ईच एंड एवरी जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है? अपर केस। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, now we will see next function. ये लिखा है सबने? नोट डाउन करके लिया है सबने? यस सर। यस सर। ओके, स्वैप केस के बाद अभी we will move forward. यही गुड मॉर्निंग का एग्जांपल लिखते हैं। प्रिंट इन ब्रैकेट लिस्ट नंबर 8 ब्रैकेट s1। हाँ, now tell me what will happen here? सर वो 0 टपल बनाएगा। यस, टपल और लिस्ट? हाँ, लिस्ट के अंदर दो इसका। लिस्ट के अंदर टपल क्रिएट होगा इसमें। यस और नो? टपल मींस ये दो कॉम्बिनेशन में आएगा। इट विल गिव यू डिस्प्ले योर स्ट्रिंग विथ रिस्पेक्ट टू एच एंड एवरी इंडेक्स। जैसे जी का इंडेक्स क्या है यहाँ पे? 0, तो 0 के साथ क्या डिस्प्ले होगा? 0 कॉमा जी, 1 के साथ ओ, 2 के लाइकवाइज, एंड इट विल डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। क्लियर है? यस सर। यस सर। हो गया? ऑल ऑफ इट क्लियर? इनमरेट का मीनिंग क्या है? रिटर्न द इनमरेट ऑब्जेक्ट दैट लिस्ट द इंडेक्स एंड वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट कैरेक्टर। अभी यहाँ पे मैंने ये निकाला लिस्ट, व्हाट विल हैपन? सर वो लिस्ट होना चाहिए। क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट इनमरेट ऑब्जेक्ट ऐड कुछ तो एड्रेस आया डायरेक्टली ना? ओके,
सो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वो इंडेक्स वाइज हमें ईच एंड एवरी चाहिए, तो वहां पे लिस्ट यूज करना ही कंपलसरी, मतलब सिंपली इनअबरेट लिखने से हमारा वो उस फॉर्मेट में हमारा आउटपुट नहीं आएगा, दैट इज इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू इंडेक्स. ओके, टू गेट द each and every index with respect to that character that will be stored at a specific index. For that purpose what you have to use enumerate, list of enumerate. Okay, list के साथ क्या यूज करना है हमें, enumerate. क्लियर है सबको? yes or no? हाँ, वो टपल कैसे बना? सिंटैक्स है ना, मतलब वो फंक्शन का यूज ही वैसे ही ना, हमने किया, हमने कुछ नहीं किया उसमें, इट इज इनबिल्ट. हेलो, यस सर. जो भी फंक्शनलिटी सिंपल है, मैंने क्या बताया, मैंने इनमरेट और लिस्ट नाम का जो फंक्शन था, लिस्ट ऑब्वियस लिस्ट फॉर्मेट में हो गया, इनमरेट का जो भी क्या होता है, जो भी फंक्शनलिटी उन्होंने करके रखा है, इन दैट केस बैकएंड में जो कोड किया है उसका लाइब्रेरी के लिए, इनमरेट लाइब्रेरी फंक्शन के लिए, उसमें उन्होंने ऐड करके किया होगा. क्लियर है सबको? ये हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, दैट बाय डिफॉल्ट दैट लॉजिक इज इम्प्लीमेंटेड एंड दैट आउटपुट विल डिस्प्ले इन दैट स्पेसिफिक फॉर्मेट. Okay, these are all are inbuilt function. Clear है? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we will move forward. ये उसमें से अभी कुछ फंक्शन तो हमने ऑलरेडी देखे भी है, जैसे कि प्रिंट लेन फंक्शन देखा ना? हाँ सर. लेन इन ब्रैकेट, Yes, sir. क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? S1. So it will give you what? Len of that specific. Well, clear है? All of you clear with this? Yes, sir. ये दो फंक्शन जो अभी आगे मैं ले रहा हूँ, these are very important with respect to MCQ. Min of S1 and then print max of. अभी ये जनरली हमने जो लिस्ट में लिया, इस लिस्ट में किया था, उसमें वो हमने किसके रिगार्डिंग किया था, इंटीजर के लिए किया था, तो उसमें क्या किया था उसने, mean of that specific L1 and mean of max of that specific L1. What will happen with respect to that? क्या हुआ था? लार्जेस्ट नंबर है. हाँ, लार्जेस्ट नंबर. और अभी इस केस में कैसे कंसीडर करेगा वो? S का वैल्यू करेक्ट, एस की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर होगा, जो मैंने आपको कंपैरिजन में बताया था मैंने आपको. ओके, सो ऑब्वियसली यहाँ पे अभी ठीक है. गुड मॉर्निंग में सबसे छोटा कौन सा है? जी. और सबसे बड़ा कौन सा है? आर. आना चाहिए बात. हाँ जी है जी. नहीं ना, क्या है? स्पेस है सबसे बड़ा. ओके, क्लियर है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस निकालेंगे हम, तो आपको पता चलेगा वो. तो स्पेस निकालेंगे तो क्या होगा अभी? GN. क्लियर है सबको? ऑल ऑफ यू क्लियर? यस और नो? सो मीन मैक्स लेन फंक्शन क्लियर है सबको? तो डायरेक्टली क्या होगा, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्या होगा, डायरेक्टली आपको एग्जांपल दिया जाएगा एंड इन दैट केस यू हैव टू फाइंड आउट आउटपुट. एक स्ट्रिंग दिया जाएगा, 2 लाइन का कोड, जैसे मैंने आपको अभी UT1 में जैसे कोड थे 2 लाइन के, 3 लाइन के. सो लाइकवाइज फंक्शन के ऊपर, स्ट्रिंग के फंक्शन के ऊपर एटलीस्ट 2 or 3 कोड विल बी देयर रिगार्डिंग योर स्ट्रिंग फंक्शंस, मतलब 2 or 3 मार्क्स वेटेज विल बी ऑलवेज देयर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. यही क्वेश्चन थ्योरी में होता है ना, तो जनरली वो क्या करते हैं, एक्सप्लेन एनी 3 इनबिल्ट फंक्शंस व्हिच आर अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन स्ट्रिंग, और डायरेक्टली वो क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन लोअर फंक्शन, अपर फंक्शन और एनी अदर फंक्शन. डायरेक्टली 3 फंक्शन, 2 मार्क्स फॉर ईच फंक्शन. थ्योरी के लिए होता है. तो ऑब्वियसली यही वेटेज आपका एमसीक्यू एग्जाम के लिए भी होगा, बिकॉज टोटल 13 मार्क्स आर देयर फॉर दिस यूनिट. ऑब्वियसली 13 मार्क्स, तो ऑब्वियसली 4 to 5 मार्क्स विल बी ऑब्वियसली देयर फॉर इनबिल्ट फंक्शन. की बाकी के क्वेश्चंस ज्यादा नहीं, बाकी के क्वेश्चन जो नॉर्मली स्लाइड स्ट्राइड के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, इन नॉट इन के ऊपर हो सकते हैं, कुछ अदर इनम्यूटेबिलिटी वगैरह या कॉन्केटिनेशन एपेंड उसके ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं, फंक्शन स्ट्रिंग डेफिनेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं. सो देखो अभी वेटेज ज्यादा किसके लिए होगा, स्पेसिफिक क्या functions of that space, because 30 to 35 functions are given in your syllabus. Okay, तो देखो अभी next function we will do print in bracket. यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्ट्रिंग लेंगे,
I will write here S1 dot replace. Okay, replace में भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? Tell me what will happen here. Sir, hello will be replaced by he, then the second hello will be replaced by for. No. जहाँ पे H ही आया है वहाँ पे क्या है? Yes, they look below. इससे मैंने 3 स्ट्रिंग वहाँ पे ऊपर मेंशन किए हैं, तो पूरा स्ट्रिंग कंसीडर होगा वो. Okay, sir. ओके, रिप्लेस क्लियर है? Yes or no? Yes, sir. तो यहाँ पे सिंटैक्स भी पूछ सकते हैं यहाँ पे. सो जो पहला वाला होता है वो क्या होता है? ओल्ड, एंड दिस वन इज न्यू. क्लियर है? सिंटैक्स क्या है? रिप्लेस इन ब्रैकेट ओल्ड कॉमा न्यू. ऑल ऑफ यू क्लियर? Yes, sir. जिससे जो रिप्लेस करना है वो पहले लिखते हैं, उसके बाद जिससे करना है वो सेकंड लिखते हैं. सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद द रिप्लेस फंक्शन आल्सो? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? हेलो. No, sir. ओके, सो अभी बाकी के भी इंडेक्स वगैरह, फाइंड वगैरह, स्टार्ट विद एंडविक्स, काउंट, सेंटर, एल स्ट्रिप वगैरह, बाकी बहुत से फंक्शन बाकी है अभी, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. और एक की बात याद रखनी है आपको, अभी ऑब्वियसली यूनिट टेस्ट में तो कोई फेल हुआ नहीं है. ओके, सो नो रीटेस्ट विल बी देयर फॉर पीपीएस ऑन जो भी अभी टाइम टेबल है उसके हिसाब से. ओके, ऑल आर पास, बट वी हैव सम एनालिसिस वी हैव डन. जैसे कि आपका M1 का एक लिस्ट वहां पे उस दिन आया था, देखो, रिमेडियल लेक्चर के लिए. हेलो. Yes, 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 sir. sir. तो उसमें हमने क्या किया एक्चुअली, कुछ वहां पे मतलब ऐसा कुछ ये नहीं किया, वहां पे वो वर्ड वहां पे मेंशन किया, बट 3 चीजें वहां पे पैरामीटर मेंशन किया हमने: 12 मार्क्स, प्री रिक्विजिट टेस्ट एंड यूनिट टेस्ट 1. और वो तीनों के कंबाइन करके टोटल 100 में हमने कन्वर्ट किया उसको. तो उसके हिसाब से हमने कुछ एडवांस लर्नर और स्लो लर्नर, मतलब ऐसे ही मत आपको, मतलब जो भी आ रहे हैं उसमें उस कैटेगरी, ऐसा उसका मीनिंग वैसे नहीं हो रहा है कि वो स्लो लर्नर से. गेटिंग क्लियर है सबको? यस और नो? पर वो एक्टिविटी करना है हमें, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम. सो 90%, 90 क्या वो जिनको मार्क्स है, अभी वो लिस्ट मैंने क्रिएट मतलब फॉर पीपीएस आई आल्सो प्रिपेयर. सो टोटल 18 स्टूडेंट्स आर देयर. तो उनका 12 मार्क्स, यूनिट टेस्ट मार्क्स एंड प्री रिक्विजिट टेस्ट मार्क्स टोटल मिला के जिनको 90 अबव है, ऐसे टोटल 18 स्टूडेंट्स है. ओके, तो उनके लिए एक एडवांस लर्नर एक्टिविटी है. तो मैंने वो शीट क्रिएट करके रखा है, उनका नाम और उनके आगे एक टॉपिक मैंने ये दिया है. जैसे हमने गूगल ये अपना फ्लिप क्लासरूम एक्टिविटी क्लियर किया था ना, इंप्लीमेंट किया था ना लास्ट वीक में, लास्ट वीक. तो वैसे ही आपको क्या, वो टोटल 18 स्टूडेंट को क्या करना है, आई हैव असाइन one टॉपिक फ्रॉम यूनिट नंबर 1 2 3 4 अप टू 3 तक. Okay, so that topic they have to prepare and they have to be present. Okay, in next week that week activity for all subject, that activity will be there actually, but I will tell regarding my subject, that is PPS. Okay, so जो भी 18 students मैं next lecture में बताऊंगा, दो भी are there in that category above 90. Okay, next स्लो के लिए क्या किया, एक्चुअली स्लो लर्नर्स हमारे इसमें एक्चुअली 70 का क्राइटेरिया मैंने रखा है. सो बिलो 70 जिनके मार्क्स आ रहे 12, उसके बाद यूनिट टेस्ट एंड प्री रिक्विजिट टेस्ट. सो दोज आर स्लो नहीं बोलने वाला मैं उनको एक्चुअली. तो दोज आर द स्टूडेंट दैट दे हैव टू अटेंड द रिमेडियल लेक्चर ऑफ दैट स्पेसिफिक पीपीएस ऑन 17. क्लियर है सबको? और जिनको एक्स्ट्रा अटेंड करना है दे कैन आल्सो अटेंड इट. यस और नो? उसमें क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यू और कुछ बेसिक पार्ट वी विल कवर. जो भी आपको डिफिकल्टी है यू कैन आस्क इन दैट स्पेसिफिक रिमेडियल लेक्चर. दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम. तो वहां पे मैं क्यों आया उसमें, उस कैटेगरी में, उसमें उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. जो भी ऐसा भी हो सकता है, those are very good in that specific PPS subject with respect to that programming, those are giving the answer, but those are not coming that specific advanced learning activity. ऐसे भी हो सकता है. क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि 12 के मार्क्स, किसी के 12 के मार्क्स फॉर एग्जांपल 70 मार्क्स आर देयर, तो उसका मैंने 50 में से 35 हो गया, और यूनिट टेस्ट में 25 करके कुछ तो हो गए मार्क्स, हो गए टोटल कितने हो गए, 35 प्लस 50 85 हो गए. तो ऑब्वियसली वो 90 के अबव नहीं जाने वाला. यस और नो? क्लियर है? Yes, sir. Some of the students are getting the better marks in for unit test also, but they are not in advanced learner activity. Okay,
सो वो भी आपको वहां पे कुछ मतलब मन में वो बात नहीं रखनी कि आई एम ए स्लो लर्नर, इसलिए मैंने वो वर्ड वहां पे मेंशन नहीं किया है स्लो लर्नर और एडवांस लर्नर। सिर्फ मैंने बताया कि दिस इज एक्टिविटी, यू हैव टू प्रेजेंट दिस टॉपिक एंड यू दीज आर द स्टूडेंट, यू हैव टू अटेंड दिस लेक्चर। क्लियर है? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? Yes, Yes, sir. Yes, I sir. think most of the students have also done with code pair activity, and they have done nicely also. Very nicely you have prepared, done that activity, and also मतलब आपने प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट करके वो मतलब दिख रहा है वो स्नैपशॉट में जो आपने भेजे है जो पीडीएफ, उसमें वो प्रॉपरली कर रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कि यह अपने मन से वो चीज एक्टिविटी कंप्लीट की है। Obviously at least 41 responses I have got. So each and every मतलब in one group I think 4 or 2 minimum 2 students are there. So obviously those are remaining, they can complete it and upload it up to 18. Okay, clear है सबको? Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ, tell me. सर ये जो एडवांस लर्नर के जो भी लिस्ट रहेंगे सर वो चेंज होते रहते हैं क्या कि नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है वो एक ही बार निकालते हैं, मतलब यूनिट टेस्ट 1 जो होता है और प्री रिक्विजिट टेस्ट 1, एक्चुअली बताओ सिंपली आपको बताता हूँ मैं। दिस इज एक्चुअली वी आर फॉलोइंग द आईएसओ स्ट्रक्चर फॉर आवर एकेडमिक्स एंड एनबीए। ओके, सो एनबीए एक्रेडिटेशन मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन इज देयर फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, कंप्यूटर इज देयर, मैकेनिकल इज देयर, एंड एफई इज आल्सो 50 मार्क्स इज देयर फॉर एफई, बट फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट 1000 मार्क्स आर देयर। ओके, so in that part one academic part is there, academic activities. Okay, student oriented होता है ये एनबीए, और आईएसओ होता है, आईएसओ एकेडमिक ओरिएंटेड होता है। आईएसओ की जो भी पॉलिसी हमने जो भी डिसाइड की थी 2 years ago 2018 से हम आईएसओ फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा वो जो क्वेश्चन पेपर होता है जो अपने मैं भी यहाँ पे मैंने तो गूगल फॉर्म में किया था इस टाइम, जब जो आप एक्चुअल फिजिकली जब एग्जाम देते हैं तो हार्ड कॉपी आपको मिलती है, तो वहां पे क्वेश्चन पेपर के ऊपर 11A नाम का एक रिकॉर्ड होता है, ACAD 11A। तो ACAD 11A मींस क्या होता है? दैट इज अ रिकॉर्ड व्हिच विल बी यूज्ड फॉर यूनिट टेस्ट पेपर। 12B is for that you are getting the marks for that specific subject, and that mark we will put in that 12B record. तो वैसे ही एक स्लो एंड एडवांस लर्नर इज द वन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ISO. So that we have to prepare at one time only at the start of that semester. Okay, clear है? Yes or no? सर So these are the सर मतलब अगर अभी ऐसा अभी अगर लिस्ट बन गया तो 4 साल नहीं के नहीं लिए नहीं नहीं, same 4 रहेगा? साल के लिए नहीं, फॉर दैट स्पेसिफिक सेमिस्टर ओनली। Okay, for first year we are follow this criteria, but from second year onwards your pre-requisite test and your unit test marks both are combinedly calculated, and your average will be calculated, some marks aggregate will be calculated, and depending upon that subject will be vary, subject wise vary होता है वो। क्लियर है? सो सेकंड ईयर सेम 1 में अलग होंगे, सेकंड ईयर सेम 2 में अलग होंगे, थर्ड ईयर सेम 1 में अलग होगा, सेम 2 में अलग होंगे, बी के फर्स्ट सेम लाइकवाइज दैट कैन बी वैरी। ओके, तो यही मैंने आपको मतलब वो मैं भी जब मैंने ये आपका क्रिएट किया यहाँ पे जो भी मैंने मार्क्स जो भी वैल्यू आए उसके हिसाब से, सो ऑब्वियसली उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे है कि those who are giving those are very good in programming also, they are giving the answer very nicely in lecture also, but they are not there in that specific what list। ऐसे भी हुआ है। why? because कुछ तो होगा, क्योंकि 12 का स्कोर कम होगा या आपका कोई तो चीज वहां पे कम ज्यादा होगी। सो उसके हिसाब से मैंने क्या किया, सिंपली आई हैव डन द व्हाट, जो भी मेरे मार्क्स आपके मार्क्स है उसके हिसाब से मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया एंड दैट मार्क्स वी हैव कन्वर्टेड इनटू दैट स्पेसिफिक 100। सो उसके हिसाब से निकला। तो वहां पे आपको कोई भी चीज मन में नहीं रखनी है कि आई एम नॉट इन एडवांस लर्निंग एक्टिविटी। क्लियर है सर? हाँ, आपने कहा 90 के ऊपर एडवांस और 70 के नीचे स्लो, सो उनके बीच का वो अच्छा वो मिडल, मतलब वो नहीं कुछ, मतलब वो उसका कुछ नहीं है, वो कर रहे मतलब प्रॉपर ही कर रहे हैं सारी चीज, ऐसे हो रहा है उसका मीनिंग। अरे दैट इज अ पार्ट ऑफ आईएसओ पॉलिसी दैट वी हैव टू फॉलो। ठीक है, वो यही फॉर्मूला यही हमने मैथ्स का देखा है, तो मैथ्स ने अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ दैट 55 बिलो 55 स्लो लर्नर। ओके, और चीजें उनकी उन्होंने कुछ ऐसा भी किया कि 12th में बहुत कम मार्क्स है उसको भी, और यहाँ पे अच्छे मार्क्स है कहाँ पे प्री रिक्विजिट यूनिट टेस्ट, फिर भी उन्होंने उसको स्लो लर्नर में भी रखा है। ऐसे भी कुछ है, तो डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट वाइज दैट विल बी वेरी। क्लियर है? अरे Yes, sir. आप उसके ऊपर ज्यादा मत Yes, sir. मत करो, सिंपली आई हैव टोल्ड
आप उसका कुछ मन में मत रखो कि ये मैं एडवांस में क्यों आया, मैं स्लो में क्यों आया। स्लो इसलिए स्लो लर्नर का वहां पे स्लो वर्ड भी मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। सिंपली आई विल पुट दिस नंबर्स यू हैव टू, मुझे पता है कि वो अच्छे भी हो सकते हैं बोलो स्टूडेंट्स, दोज आर नो नथिंग ऑल नथिंग, जो भी हमने सिलेबस अभी तक किया है उनको मार्क्स भी अच्छे हो सकते हैं यूनिट टेस्ट में, बस ड्यू टू देयर 12th परफॉर्मेंस वो एग्रीगेट जो भी आउट ऑफ 100 वो कम आया होगा। क्लियर है सबको? Excuse me, sir. हाँ, So where you are going to display that list? I will display it on your WhatsApp group, na? Directly I will post the number of that specific numbers, roll number, and for specific advanced learner I will put that directly photo निकालूंगा मैं जो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, और डायरेक्टली बताऊंगा कि दिस स्टूडेंट्स हैव टू प्रेजेंट दिस टॉपिक्स। ओके, Yes, sir. हर सब्जेक्ट के लिए ईच एंड एवरी सब्जेक्ट दिस एक्टिविटी विल बी देयर। ओके, सो अरे मन में कुछ मत रखो इसके रिगार्डिंग, कुछ नहीं होने वाला उससे। फाइनली हमें क्या चाहिए, आपको परफॉर्मेंस इन योर फाइनल एग्जाम एंड योर ओवरऑल परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट, जो मुझे पता है कौन क्या कर रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं कि स्लो लर्नर थे उनको मार्क्स कम मिलने वाले हैं या कुछ, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो दे विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स इन इंटरनल आल्सो। क्लियर है सबको? यस सर। और इंटरनल जो मार्क्स होते हैं कैलकुलेशन, वो आपके यूनिट टेस्ट मार्क्स, प्रीलिम मार्क्स, यूनिट टेस्ट 2 मार्क्स, आपका जो अभी मैंने जो आपको एक्टिविटी दे रहा हूँ, जो भी कोड पेयर एक्टिविटी, असाइनमेंट्स, उसके बाद हमारा जो कम्युनिकेशन चल रहा है, मतलब विद इन अ लेक्चर जो भी क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एटलीस्ट आप यू कैन रिप्लाई इट लाइकवाइज, यस और नो, लाइकवाइज आप कुछ तो बोलो। गेटिंग? सबको बोलना है। मतलब क्या होता है, जनरली 15 to 20 स्टूडेंट्स आर देयर and those are only tell me yes, yes we will get is no likewise. Okay, so you can discuss these things. Okay, all of you clear with this? Yes sir। Yes sir। Yes, sir. कौन सा लेक्चर था इसके पहले? केमिस्ट्री ना? Yes, sir. Maths। मैथ्स एंड केमिस्ट्री। Chemistry। Chemistry for E division. सर ई का केमिस्ट्री था। E के लिए केमिस्ट्री था। So all these students are present in that chemistry lecture ना? क्या कोई ऐसा है कि जो केमिस्ट्री में नहीं था और अभी लेक्चर में है? सर मैं रोल नंबर यहाँ पे इसमें कमेंट बॉक्स में डालो रोल नंबर।